यीशु इतना सुंदर नाम, खूबसूरत नाम हमें दिया गया है। आइए इस नाम की हम आज परस्तिश करेंगे। You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Sing it. Yours is the kingdom, yours is the glory, now and forevermore the same. Again, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, shout it out. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, call out to his name right now, church. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your everlasting love. Jesus. And he shall be called Jesus, Emmanuel. For he shall save all of mankind from their sins. He shall be called Jesus, Yeshua, the Savior of all mankind. All mankind. All mankind. उसका नाम तू यीशु रख, जो सबको बचाने के लिए और सबका उद्धार करने के लिए आया है। मरियम को वो फरिश्ता बोला, The angel told Mary, he has been given a name above every other name. Before which name? It is before that name, church. It is before that name, people of God. It is before that name. You may be bowing down before some other name this morning, but I wish to tell you there is a name higher than that name. There is a name higher than every other name in and on this earth. There is a name higher than every other name in the heavens, on the earth, and even below the earth. And that name has been given by Adonai himself, by the Father himself. You shall call his name Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, our Messiah, my Messiah. Hallelujah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares
his name right now. Jesus. Whisper it. Jesus. The Lord has put his very name inside your breath. Jesus. El Elyon lives inside of you by his Spirit. Jesus is in this place. He is in the home of every person that has taken his name right now. He's standing right next to you, right next to that chair that you are sitting on, my brother. He is standing right next to that bed that you are sitting upon, my sister. He's standing right next to you in that hospital bed where you are lying upon. He is right near you. I see the Lord touching people. Jesus. Jesus. Sometimes you don't need anything else. You don't need fancy words. You don't need a lot of noise. You don't need nothing else. All you need is to say that name of Jesus. कितने बार और दूसरे चीजों की, वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है, आवाज की जरूरत नहीं होती है, जोर जोर से पुकारने की भी जरूरत नहीं होती है। एक ही नाम अगर आपने बोल दिया, यीशु वो नाम, तो आपके सारे जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपको शिफा तुरंत मिल जाएगी। बस यीशु वो नाम ले लेना, क्योंकि वो आज आपके पास खड़ा है। उस कमरे में आपके पास वो खड़ा है, उस टेरेस पर जहाँ पर आप खड़ी हो और देख रही हो, छिप छिप के देख रही हो इस सर्विस को, वहाँ पर यीशु आपके पास खड़ा है। Thank you for your presence in this place. Thank you, Lord, that you never fail us, that every time we cry out to Jesus, just like when blind Bartimaeus called out and said, Jesus, Son of David, have mercy. Out of all the noise, you heard that one cry of desperation and faith, and you turned towards him and you said, what do you want me to do for you? And Bartimaeus said, Lord, that I may receive my sight. Thank you, Lord, that you hear our cry, even in the midst of all this turmoil, in the midst of all this noise. When your people cry out to you, you hear us and you answer us. Today I ask that you would minister to us, anoint your servant as he brings the word. Let every word bring life, bring healing, bring deliverance, oh, bring repentance in the name of Jesus. And let your kingdom be established. तेरा राज आज यहाँ पर स्थापित हो, और हर एक शब्द जो तेरे बंदे के मुंह से निकलेगा, उससे शिफा और छुटकारा यीशु के नाम से लोगों तक पहुँचने पाए। आज तू ये हमारे बीच में चमत्कार और तेरी मौत से करके ही दिखा, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। Hallelujah, hallelujah. Amen. Shalom, brothers and sisters, and welcome to our weekly church service. भाइयों बहनों सभी को शलोम, जय मसीह की, और हमारे इस रविवार की इबादत में आप सभी का स्वागत कर Are रहे you हैं। ready to receive this morning? क्या आज आप तैयार हो स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के Are you लिए? ready to receive what Yes, the Lord amen. has for you this morning? परमेश्वर ने जो आपके लिए आज रखा है, वो चीज हासिल करने के लिए क्या आपकी तैयारी है? So without wasting any time, we're going to go straight into the word. I have a lot to say this morning. आमीन। इसलिए मैं ज्यादा देर इस पे नहीं लगाऊंगा, हम सीधे सीधे कलाम में जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें आपको मुझे आज बतानी है। So a quick prayer. और जल्दी से हम तुरंत दुआ करेंगे। Holy Spirit, I need you this morning. We need you this morning. पवित्र आत्मा, तेरी जरूरत हम सबको है, मुझे है। Help me to preach this Yes, Lord. sermon this morning. आज का ये प्रचार बोलने के लिए, बांटने के लिए तू मुझे मदद कर। And prepare the hearts of each person who's Amen. listening right now. और हर एक व्यक्ति जो आज सुन रहा है, उनके दिलों को तू तैयार कर। Help them to understand
ताकि वो समझ पाएंगे Help them to accept the word और तेरे वचन को वो ग्रहण करने पाएंगे, and let it bear good fruits in their heart. और जो वचन उन्होंने ग्रहण कर लिया उनके अंदर उसके द्वारा अच्छे फल दिखने हो We सके। also pray that there be no interruption this morning. आमीन। और हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि आज सुबह कोई भी रुकावट हमारे बीच में और सामने नहीं आएगी। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से Amen. मांगते हैं, आमीन। Amen. So we are still continuing in our series that I began a few weeks ago on how God wants you to put on His full armor. और पिछले हफ्ते में जो हमने ये श्रृंखला चालू की थी जो हथियारों के बारे में थी, उसमें हमने सारे हथियार देख लिए और मैंने बताया परमेश्वर कैसे चाहता है कि आप वो पूरे जो हथियार है पहन लेना। So last week I explained on one piece of weaponry that Paul did not explain about. अब पिछले हफ्ते में सप्ताह में मैंने बताया था एक हथियार था, एक औजार था जिसके बारे में पौलुस ने बताया नहीं था। The reason may be that while being guarded by the Roman soldier, that soldier did not wear that piece of weaponry because he was not at war, but he was guarding Paul in prison. पौलुस ये कब लिख रहा था हथियारों के बारे में? जब वो सैनिक के साथ बंधा हुआ था। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एक हथियार के बारे में उसने यहाँ पर नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो सैनिक जो था पौलुस के साथ उस कैद खाने में बैठा हुआ था, बंधा हुआ था, वो युद्ध के भूमि पर नहीं था, इसलिए वो हथियार उसके हाथ में तब उस वक्त नहीं होगा, इसलिए पौलुस ने यहाँ पर उसके बारे में नहीं लिखा। So we are still in Ephesians chapter 6 and we go back to verse 18. I do the reading. और इफिसियों के 6वें अध्याय में अभी भी हम हैं और 18वीं आयत हम पढ़ने वाले हैं। So praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. इफिसियों 6:18 हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So we believe when Paul is writing this verse, he has in his mind that piece of weaponry which we is called the lance, which is the spirit, the spear. सुनिए, जब पौलुस ये आयत लिख रहा था, जरूरी उसके मन में वो एक हथियार आया होगा जो उस सैनिक के ऊपर नहीं था, और वो हथियार होगा जिसको भाला हम बोलते हैं। Now the Roman soldier had many kinds of spears. We saw last week there were five small ones, and we had the long 6-foot one which was used to throw. अब देखिए, वो जो रोमी सिपाही सैनिक होता था उसके पास 5 प्रकार के भाले होते थे, और जो 5 प्रकार के अलग अलग किस्म के भाले थे उसमें छोटे वाले भी होते थे जो नजदीकी युद्ध में इस्तेमाल किया जाते थे। So just like there are different types of spears which was used, we also have different kind of prayers. अब जिस प्रकार से अलग अलग किस्म के जो भाले होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग प्रार्थनाओं को भी इस्तेमाल किया जाता है। Now, Amen. the other parts of the weaponry that we mentioned were actually used to defend the Roman soldier. Now we are speaking not of defense, but we're speaking of offense. That means the spear is used to throw and to take down the enemy before he takes you down. सुनिए, ये जो भाला या बर्छी होती है, वो आप बर्छी को फेंकते हो। बर्छी भी एक लंबा भाला सा होता है, वो आप फेंकते हो ताकि दूर तक शत्रु तक वो उसके ऊपर वार करे और उसको मार डाले। So that is why during these days of fasting we are giving an opportunity to all our brothers and sisters to come for half an hour and to pray together with the church. To pray, I say again, pray. You have different kinds of prayers which are being said, and we all
come together as a church, united, and we pray together. सुनिए, इसलिए हम हमारे कलीसिया के अलग अलग लोगों को, भाई बहनों को यहाँ पर हमारे पेज पर आने की और प्रार्थना करने के लिए हम समय दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर, केवल हम ही नहीं, हम सब मिलकर कलीसिया के नाते एक होकर प्रार्थना कर सके. So there's 6 kinds of prayers, like I started off last week on the prayer of consecration. There's a prayer of agreement, the Amen. prayer of intercession, the prayer of petition, of supplication, authority and thanksgiving. I think I made more, but बहुत से प्रकार के अलग अलग किस्म के प्रार्थनाएं हैं, और बहुत से जो है वो है शुद्ध करने की जो प्रार्थना होती है, फिर तौबा करने की प्रार्थना होती है, फिर एक विनती करने की प्रार्थना, याचना करने वाली प्रार्थना भी होती है. बहुत से हमने देखे उपकार देने वाली, उपकार स्तुति वाली प्रार्थना भी होती है, और भी ये है, लेकिन ये थोड़े जो प्रार्थनाएं हम उनको देखने वाले हैं. like I mentioned last week, the prayer of consecration, I gave you an example of Hannah, who prayed in the temple, and she made a vow that if God gave her her son, she would offer him to his service. अब देखिए, एक प्रार्थना जो पिछले बार हमने देखी थी, वो हन्ना की प्रार्थना थी, और वो जो थी वो थी पवित्र करने वाली, बनाने वाली ऐसी प्रार्थना, मतलब कि समर्पण की प्रार्थना. कौन सी थी वो? उसने प्रतिज्ञा परमेश्वर को मंदिर में दी. हन्ना ने दी. क्या बोली वो? अगर तूने मुझे बेटा दिया परमेश्वर, तो मैं वही बेटे को तेरे मंदिर में वापस लाकर रखूं दूंगी, तुझको वापस दे दूंगी. So I mentioned the word prayer used in the Greek is the word used in the Greek is proeske, which means proes means to be face to face, that is to be have an intimate relationship with God. That's right. प्रोएस्के ये शब्द मैंने पिछले बार आपको बताया था, यूनानी भाषा में प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है. प्रोस मतलब आमने सामने, परमेश्वर के हम बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं जब हम प्रार्थना में उसके सामने आते हैं तब. And the SK part means your desire, your vow which you make. That's right. अब ये जो एसके जो रहा हुआ शब्द है, उसका मतलब है इच्छा या तमन्ना, या जो हम उसके पास आने की हमारे मन में तमन्ना होती है, वो रखते हैं. So today, this morning, we're going to continue the prayer of petition. Yes, इसको बोलते हैं रूबरू, जो हम उसके सामने आते हैं. आइए आज हम जो petition मतलब हम जो पेश करते परमेश्वर के सामने याचना वाली प्रार्थना देखने वाले हैं. So when this word is used in the Greek, it's used 40 times in the New Testament. ये शब्द यूनानी भाषा में जब इस्तेमाल किया जाता है, तब वो 45 बार नए नियम में पाया जाता है. 45 Now बार. the word used in the Greek is diasis, which means a need or a want, a need or a want. अब इसका शब्द डाइसिस होता है यूनानी भाषा में, मतलब उसका मतलब या अर्थ होता है एक जरूरत. So, we need to thank the Holy Spirit for inspiring Paul, writing in the Koine Greek, which means the common Greek, which gives us more in-depth That's right. meaning of the word. इसलिए पवित्र आत्मा के और पौलुस के भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी भाषा में, जैसे हम समझ पाएंगे उस प्रकार की हमारी समझने वाली भाषा में, ग्रीक वाली भाषा में उन्होंने इसका अर्थ समझा के हमें दिया है. So diasis means it's a need or a want. और ये diasis मतलब एक जरूरत. Now this kind of prayer, many of you know this prayer because I think this is the prayer which you make almost every day, not even once, but many times a day. आवश्यकता या जरूरत. अब इस प्रकार की प्रार्थना सब लोग जान लेते. क्यों? हर रोज, शायद एक दिन में बहुत से बार आप ये प्रार्थना बोलते जाते, सिफारिश की प्रार्थना. Why do you make this kind of prayer? Because you have an you have insufficiency in your life, so you go to God and you make your petition to Him. अब आप आपके जीवन में ये प्रार्थना हर रोज क्यों करते हो भाइयों बहनों? क्योंकि आपके जीवन में शायद कुछ कमी घटी है, घटियां होती है रोज, और इसलिए प्रभु के पास रोज जाकर हम उसके सामने वो पेश करते हैं हर वक्त Now I जाके. said this is a prayer of a need or wants, but our emphasis is more on the need, but not so much on the wants. सुनिए, मैंने बोला ये सिफारिश या एक याचिका की ये प्रार्थना है, मतलब हमारे जो जरूरतें हैं वो हम पेश करते प्रभु के सामने,
चाहत जो है हमारी वो प्रभु को हमें बतानी नहीं है, जो जरूरत है वो पूरा करता है। Like I said हालेलुया। last week, your basic needs, घर कपड़ा। yeah, roti kapra makan. और जैसे पिछले बार मैंने बताया आपको कि आपके जो जरूरत, जो मूल जरूरत कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। That's needs, basic needs. That's social studies. You do that in school. ये हम हमारे स्कूल में भी सीख लेते हैं। आपको ये जरूरत हर व्यक्ति को इस दुनिया में होती ही है। Now your wants may be different. It may be a very big house. It may be, like I say, branded clothing and food. Very rich and non-veg most of the time. It depends. अब हमारी जो चाहत होती है भैया, वो तो बहुत ज़्यादा होएगी। शायद हमें ऐसे सादे जो बिल्कुल कपड़े हम पहनते हैं रास्ते पे से उठा के, वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे, ब्रांडेड चाहिए होंगे, महंगे वाले कपड़े। और खाने में भी हमें घर का खाना शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो बाहर सब्जियां खाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए बाहर जाके नॉनवेज खाने में ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे हमारी चाहत बढ़ती जाती है। So those are wants, but we focus mainly as Christians on our needs. अब ये तो चाहत हो गई। हम मसीह होने के नाते हमारी जरूरत जो है, आवश्यकता जो है, उस पर ज्यादा हम जोर देते हैं। So we need these basic needs in order for us to live on this earth. सुनिए, ये जो मूल जरूरतें हैं हमें लगती है इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें जरूरत होती है। So this kind of prayer is not a sin. Actually, it should be made like Jesus said, ask and it shall be given, seek and you shall find, right. knock and the door shall be open. I think we sang this morning. सुनिए, आज सुबह ही हमने गीत गाया था कि मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो पाओगे। आप जब प्रार्थना ये करते हो तो आप क्या गुनाह या पाप नहीं कर रहे हैं? There's nothing wrong. उसमें गलत नहीं है कुछ, आप ठीक कर रहे हो यदि आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहे But हो। maybe there's a problem of the way we ask and what we ask for. प्रार्थना, ये वाली याचना की प्रार्थना जो होती है प्रभु को मांगने की, चीजें मांगने की, गलत नहीं है, लेकिन हम किस तरीके से मांगते हैं वो गलत होता है। We're going to see an example. Let's go to the scriptures this morning. आइए। Let's go to the book of Hebrews. इसके बारे में हम एक उदाहरण देखेंगे इब्रानियों की पत्री में जाकर। It speaks of a prayer that 5:7, chapter 5 verse 7. 5:7, इब्रानियों की पत्री 5:7। It says, who in the days of his flesh, he's speaking of Jesus, और when he had offered up prayers and supplications. यहाँ पर लिखा है कि यीशु के बारे में, जब उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसने जो प्रभु के सामने प्रार्थनाएं और विनती की। Yes, with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. और जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Now if you go to the Gospel of Luke. लूका रचित सुसमाचार में अगर देखा, Let's just go there quickly. The Gospel of Luke, chapter 22, verse 42. जल्दी से वहां पर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 42वीं आयत। Jesus made this prayer. यीशु ने ये प्रार्थना यहाँ पर भी की। It says, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. देखिए यहाँ पर यीशु क्या बोलता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। And we all know that this prayer was answered. अब आप और मैं सब जानते हैं ये प्रार्थना का जवाब उसे मिल गया। Amen. Hallelujah. Not the part where it says, take this cup away from me, no. पहला भाग जहाँ पर यीशु बोला ये कटोरा मुझसे हटा ले, वो उसका जवाब नहीं मिला Now उसे। Jesus was he was in a body made of flesh and blood. सुनिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तब वो तो प्रभु था, जी हाँ, लेकिन एक स्वाभाविक तौर पर शरीर, मांस और लहू में वो यहाँ पर घूम रहा था। And Jesus knew what is about to happen to him on that cross. और वो शरीर के रूप में यहाँ पर था, इसलिए उसको पता था उस क्रूस पर उसको क्या क्या सहना पड़ने वाला है। Now, सहने as a man who's going to be beaten up, अब एक मानव होने के नाते जब उसकी ताड़ना होने जा रही थी, उसको क्लेश सहन करना पड़ रहा था।
he was going to be given blows on his face and other parts of his body. उसके ऊपर तमाचे और चाटे मारने वाले थे लोग, उसको बहुत ज्यादा सताने वाले थे, And he was about to be nailed to a cross. और वो एक सलीब पर भी उसको कीले ठोक ठोक कर उसको वहां पर चढ़ाने जा रहे थे. He knew he was a human. He knew when he fell down, when he was a young boy, when he got hurt on his knee, Yes. it pained. वो जानता था भैया, वो तो मानव था, आपके और मेरे जैसे लहू और मांस के शरीर में घूम रहा था. जब छोटा बच्चा था, शायद वो गिर गया होता जमीन के ऊपर और उसको चोट भी लग गई होगी, उसको उसका दर्द मालूम था. Or while working with the wood and a hammer, if he accidentally hit his thumb with a hammer, he knows, oh, I'm Jesus. Yeah, see, nothing. No, it pained. वो जब वो काम करता था कुर्सियाँ और वो सब बनाने की लकड़ी के साथ, और जब वो अपने हाथ में वो हथौड़ा लेके कीला ठोक रहा था, उसने नहीं बोला देख रहा, अरे देख ले मैं यीशु, और जोर जोर से अपने उंगली को उसने हथौड़े से मारा. नहीं. Jesus had, as a man, in the body of a man, of course, he was aware of that weakness of, I am going to go and suffer. सुनिए, यीशु मानव था, मनुष्य भी था, उसको पता था शरीर के तौर पर उसको बहुत सताव और दर्द सहन करने पड़ने when he लगा made था. this prayer, he knew that his Father in heaven would give him that strength to go Amen. through all of this. अब जब ये प्रार्थना यीशु उस बगीचे में कर रहा था, उसको पता था प्रार्थना करने के बाद ही ये शारीरिक तौर पर जो दर्द है उसका पिता उसको शक्ति और ताकत देगा वो सहन और बर्दाश्त करने के So लिए. when he said, take this cup, the cup was not taken. We all know that because Jesus Yes. was crucified. But it says, not my will, but yours be done. That is how that prayer was answered. That's right. Because Jesus understood and he Hallelujah. agreed that your will be done. आमीन. सुनिए, गौर से सुनिए. पहले यीशु क्या बोला, उसको दर्द क्या आने वाला है वो पता चल गया, और वो बोला पिता को, अरे ये कटोरा हटा दे पिता मेरे से. तभी वो बोल रहा है, तो भी यदि तेरी इच्छा जो है मेरे जीवन में पूरी हो जाए. इसीलिए इस प्रार्थना की जो प्रार्थना का जवाब और उत्तर उसे मिला. पिता ने उसको ये प्रार्थना जो है वो दी. Let's go to the book of James. आइए याकूब के किताब में हम You can जाएंगे. understand what a prayer of petition is after we've finished this afternoon. आज दोपहर तक जब हम ये खत्म कर देंगे हमारा अध्ययन, आप समझ पाएंगे ये विनती की प्रार्थना क्या होती है. And I told you that once we finish with the series on the prayers, our prayer life is going to change, and the way we pray is going to change. We're going to pray according to God's will. आमीन. सुनिए, प्रार्थना की ये सारी श्रृंखलाएं जो हैं हम जब खत्म कर देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि सच्ची वाकई में प्रार्थना, सही प्रार्थना किस प्रकार से बोली जाती है, और प्रार्थना योग्य और ठीक ढंग से करने के बाद में आपको उसका जवाब मिल सकता है. Amen. आमीन. James chapter 5 verse 17. याकूब की पत्री 5 और 17वां आयत हम देखेंगे. So James, the half brother of Jesus, is writing, Elijah was a man with a nature like ours. 17वीं आयत देखेंगे. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था. So who was Elijah? He was a man who had the nature like ours. We know he was a great prophet. सुनिए, एलिया कौन था? हम जानते हैं वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, लेकिन आपके और मेरे जैसे उसका स्वभाव था. वो मानव था, With same nature, मनुष्य था, उसका स्वभाव हमारे जैसे ही था. made of the same ingredients. हमारे और उसके अंदर बस वो ही इंग्रेडिएंट्स थे, वस्तुएं थी. He was not given any, like all the superheroes in the world. No, those are all fake. जो छोटे बच्चे सुपर हीरोज जानते हैं, उनके समान एलिया नहीं था. सुपर हीरोज भी वो सच्चे नहीं है, वो सब झूठ है. So it says that when he prayed earnestly for rain to stop, it stopped for 3.5 years. यहाँ पर लिखा है, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 बरस के लिए भूमि पर मेह नहीं बरसा या बारिश नहीं हुई. So Elijah prayed earnestly for God to listen to him, and his prayer was answered. एलिया ने गिड़गिड़ाकर, यहाँ लिखा है गिड़गा, जोर जोर से प्रार्थना की कि प्रभु तू इस प्रार्थना का उत्तर दे दे, और प्रभु ने वैसे ही किया. Now this prayer was made. There was a reason why he prayed for the rain to stop for 3.5 years. I'm not going to go back to the story of Elijah.
अब उसने एक कारण था इसके पीछे, एलिया के इस कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा कि उसने ये प्रार्थना क्यों की, पर जो उसने प्रार्थना की 3 साल के लिए भूमि पर बारिश मत होने देना, वैसे ही परमेश्वर ने किया। So he prayed to God for God to intervene on his behalf. उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु तू मेरे लिए आज इस चीज के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए तू कुछ तो कर, मध्यस्थता कर। So he asked God to provide this spiritual power so that he could minister. He could Hallelujah. minister to the Israelites. ये प्रार्थना एलिया ने क्यों की भैया उन दिनों में? ताकि उसको और आत्मिक शक्ति और ताकत मिल पाए, जिसके द्वारा वो इस्राएलियों को उस सच्चे परमेश्वर के बारे में गवाही दे। So this kind of prayer is important, and it's made Amen. also to for people to witness Hallelujah. the power of God. आमीन। सुनिए, इस प्रकार की प्रार्थना भी बड़ी सामर्थवान होती है। क्यों? परमेश्वर की कुवत, परमेश्वर की सामर्थ इसके द्वारा दिख सकती है और लोग अपने आंखों से इस प्रकार की मौत से देख सकते हैं। हालेलुया। For provision. एक और चीज के लिए प्रार्थना की It's for जाती है, provision. जरूरतें पूरी करने Now के listen, लिए। now when Paul was addressing the church in Corinth in 2 Corinthians 8:4, और 2 कोरिन्थियों 8:4 में जब पौलुस करिन्थ की उस कलीसिया को कुछ बता रहा था, he was speaking to them about another church. वहां पर एक दूसरे कलीसिया के बारे में उनको बोल रहा था। 8:4. 8 और 4। If you read this, it's okay, let's read the whole thing. I'll read it. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed to the churches of Macedonia. He's speaking of the church of Macedonia. और पहले आयत से ही हम पढ़ लेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, That in a great trial of affliction and abundance of their joy, ताकि कि उनके क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। I don't understand. There was great affliction, but there was abundance of joy, and their deep poverty abundant in the riches of their liberality. They were poor. They were not ours. That's poor is French. They were poor. सुनिए, इधर लिखा है उनके कंगालपन में भी उद्धारता उनकी बहुत बढ़ गई थी। अब ये बात भैया समझ में नहीं आ रही है कि जब वो कंगाल थे वो आनंदित थे, कंगाल थे तब वो उदार थे, उनकी परीक्षा में वो बड़ा आनंद कर रहे थे। For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. आमीन। और इस दान में और पवित्र ने और इस विषय में मेरी ये गवाही है, उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरना सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. आमीन। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे ये लोगों ने क्या किया? बार बार बहुत विनती की। Do you understand what is happening here? अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है भाइयों बहनों। Paul did not ask the church in Macedonia for any offerings. मसेदोनिया या मकिदुनिया के कलीसिया को पौलुस ने दान नहीं मांगा। He knew they were afflicted and he knew they were poor. उनसे पैसे उसने नहीं लिए, उसको पता था कि ये लोग गरीब है, कंगाल है, उनके पास नहीं है। But लेकिन the church in Macedonia, मकिदुनिया की जो कलीसिया थी, सुनिए they भाइयों were बहनों, freely willing and imploring us with much urgency that we should receive. They are actually forcing Paul, you receive this gift, you take this financial gift because you are ministering. सुनिए, ये मकिदुनिया के लोग जो कंगाल भी थे भैया, लेकिन ये लोग पौलुस को बार बार वो बोल रहे थे कि तुम ये ले लीजिए दान, जबरदस्ती से हमारा दान ले लीजिए, ये प्यार का हमारा ये पैसा जो है, थोड़ा सा जो हमने इकट्ठा किया है, ले लीजिए कृपया करके। Now, I really don't like to teach too much on giving and when it comes to tithes and offerings. सुनिए, मुझे इस विषय पर ज्यादा जब दशमांश और अर्पण के बारे में बोलने की चीज आती है, वक्त आता है, ये बोलने पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। But even though the few times that I've spoke about tithes and offering, it is a biblical command. It is a biblical, Yes. that is where you find blessings upon your family when you have Yes. a Amen. divine protection over your
your finance. आमीन। अच्छा तो हमें लगता नहीं है बताने के लिए बार बार, लेकिन एक बात सही है और ये सुननी चाहिए आपको कि जब आप देते हो, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो अर्पण हो, दान हो प्रभु के घर में, कुछ भी हो, जब आप देते हो आप आपके जीवन के ऊपर आशीष लाते हो और एक मानो ढक्कन आपके ऊपर लगा लेते हो। The old believers in Kabod Temple, they know because they have been taught by Pastor J.N. Davre. पुराने जो हमारे सदस्य कबोड टेम्पल के, जो शाइलो टैबरनेकल कहलाया जाता था, उनको ये चीज पता थी क्योंकि पास्टर डावरे ने सिखाया था। But I feel that I have to come back with this teaching of tithes and offering because we have a younger generation who have Yes. not heard about giving their tithes and offerings, and they are being blessed. सुनिए, मुझे ऐसे लग रहा है अभी कि मुझे ये जो ये विषय है फिर से दोहराना पड़ेगा। किसके लिए? हमारे कलीसिया में बहुत सारे जवान हैं जो अभी उनको इस अर्पण के बारे में और दान देने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको जानना चाहिए ताकि उनको आशीष मिलने पाए। I'm not after your money. Do not think that I'm after your money. और हम आपके पैसों के पीछे नहीं लगे भाइयों बहनों, ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आपके पैसों की जरूरत हमें है, Because नहीं। in spite of me even mentioning tithes and offering, there are many people in the Kabod Temple who do not give their tithes, and because of the lockdown, we have not seen any offerings coming in, which is a shame because there is a need. That's There right. is a need. That's And it is a prayer of petition which Paul is That's mentioning right. right here to the church सुनिए। in Corinth. सुनिए, चर्च में तो बहुत सदस्य है, पर बहुत सदस्य ऐसे भी है जो प्रभु को कुछ भी नहीं देते हैं, दशमांश नहीं देते हैं। लॉकडाउन के चलते किसी ने दान भी डाला नहीं है प्रभु के घर में, भवन में, जबकि हर रविवार को, उसके पहले जब हम इकट्ठा होते थे लोग कुछ ना कुछ डालते थे। अब लॉकडाउन के ये दौरान किसी ने कुछ भी ना डाला नहीं है। भैया, आप कैसे जानते हो, आपको कैसे लगता है चर्च और कलीसिया कैसे चल पाएगी अगर लोगों ने दिया नहीं तो? ये हमारे सदस्यों को हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए। I don't want to embarrass the church by coming and giving a sermon on tithes and offerings. I thought, Pastor J.N. Davre did this already, and the people of Kabod Temple have understood already what it means to give the tithes and give the offerings, because you are not investing in man, you are investing in God's kingdom. Amen. मैं ये फिर से विषय जो है मैं दोहराना नहीं चाह रहा था ताकि आप शर्मिंदा ना हो जाए, लेकिन क्योंकि मुझे बताया था कि पास्टर डावरे ने इस पर बहुत से बार सिखाया हमारे लोगों को, पुराने लोगों को, लेकिन जो नए नए अभी आए हैं उनको ये पता नहीं होगा। लेकिन जब आप देते हो, मैं बोल रहा हूँ, जब आप प्रभु को देते हो, उसके भवन में जब देते हो, तब आपके ऊपर एक ऐसी आशीष आप ही लाते हो जिसके पार शैतान नहीं घुस पाता। I like it because I like it when the young people go to God with petitions. You go to God for petitions every day. Lord, give me this, I need this, I need that. Yes, but when God gives, when it comes for you to give, you find it very hard because you have now a job that gives a very, you get a very good wages nowadays, and you think, why should I take out and give to the tithes? Is mainly for the pastor. सुनिए, बहुत जवान है जो हाथ उठा कर प्रभु के सामने विनती करते, याचना करते, प्रभु मुझे दे, हर रोज कुछ ना कुछ दे। देता तो है परमेश्वर, लेकिन जो मिलता है उसमें से आप प्रभु को कितना देते हो? मांगने के लिए तो सबका मुंह खुलता है, लेकिन प्रभु को देने के लिए, खास तौर से जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हो वो महीने में, उसमें से आप प्रभु के घर में दशमांश लाते हो या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है और प्रभु के सामने इसके लिए आपको ही कुछ बोलना पड़ेगा, हमें नहीं। I'll leave that for the teaching when we come to that teaching on tithes and offerings, because we do not force people. We do not force people. For those who do not want to tithe, it's either you do not believe in the biblical law of giving. That means if you do not believe in the biblical law of giving, then you should not be too angry when you ask, because God does give. That's right. But then there's a time when He stops, because He knows that He gives, but He sees your faithfulness, and He sees whether you're obedient to the law of giving. Right. The Bible says, I'll leave that for the next time. अब जब मैं दशमांश और अर्पण के ऊपर और गहरे विषय में आपको सिखाने वाला हूँ, तब इसको मैं दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं और जब आप देते हो, आप जब जो दशमांश नहीं दे रहे हो, शायद उसके पीछे कुछ कारण होगा, इसलिए आप नहीं दे रहे हैं, और
फिर उसके बाद में प्रभु के पास जाकर मांगने की आपको हक ही नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने कुछ प्रभु को दिया ही नहीं, जो मिला उसमें से दिया ही नहीं, तो आपका हक ही नहीं पहुंचता है उसको कुछ मांगने के लिए। सुनिए, एक और चीज है, अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो परमेश्वर मतलब आपको दूर तो नहीं हटाएगा, लेकिन आपका जो वो कर रहा है आप तक, वो जो आज तक जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, आपको और बढ़ती देता जा रहा है, वो भी वो रुका सकता है। क्योंकि अगर आपने आपका हाथ रुकाया, परमेश्वर भी उसका हाथ रुका सकता है। Now let us go to 1 Thessalonian. This is Paul. आइए पहले थेसलोनिकियों में हम जाएंगे। ये Chapter 3 पौलुस बोल verse रहा है। 10. 3 और 10 हम देखेंगे। Night and day praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. पहले थेसलोनिकियों what? Chapter 3 verse 10. Yeah, got it. So what is 3 और lacking 10. in your faith? What does it mean when you are lacking in your faith? यहाँ पर लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। घटी क्या है? So Paul is making a prayer of petition because there is a need. There is a need because it says here that we may see your face and perfect. Perfect means to complete what is lacking. There is a lack in their faith, so they need something. That's and right. Paul is praying that he meets them very soon so that he could give them and complete what is lacking in their faith so that they can grow spiritually stronger. आमीन। सुनिए, रात और दिन पौलुस काय के लिए प्रार्थना करना है? उन लोगों के लिए, उन कलीसिया के लिए, ताकि विनती की प्रार्थना पौलुस उनके लिए कर रहा है, ताकि वो उनको जब मिले, रूबरू जो उनसे मुलाकात हो जाए, तब उनके विश्वास की घटी वो पूरा कर सके। उनकी विश्वास में जो कमी है वो उसको पूरा करके उनको परिपूर्ण परमेश्वर के सामने खड़ा कर सके। हालेलुया, आमीन। So this is the prayer of petition. इसको बोलते हैं याचना या विनती की प्रार्थना। You have a विनती need, की a basic याचना। need. You go to God on your knees. Some of you go on your knees sometimes because that need is so it's so desperate. That's and then you right. go on your knees and you ask God, "Oh Lord, That's right. please provide, please give." And then you say, "Oh, you are Jehovah Jireh." You will go on and you will pray. Yes, you are the one that provides. That's All right. this you know. सुनिए, बहुत लोग हैं जब जरूरत उनके जीवन में आवश्यकता आती है, एकदम घुटनों के बल जाते परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तू दे दे, अरे तू कुछ कर दे, अरे तू इसमें उत्तर दे ही दे मुझे। क्यों? क्योंकि जरूरत आने के समय में हम परमेश्वर के सामने विनती करने के लिए गिड़गिड़ा के हमें बिल्कुल किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से हो जाता है ना? Hallelujah. So during this time of lockdown, during this time of this pandemic which is continuing, इस लॉकडाउन के जरिए, इस पैंडेमिक के दौरान जो चलता ही जा रहा है भैया, खत्म ही नहीं हो रहा है। don't forget, just like we mentioned the prophet Elijah, there was a famine in the land, and don't forget, एलिया नबी के बारे में जैसे हमें बताया, उन दिनों में, एलिया के दिनों में उस देश में अकाल था। was there a lack in the house of the widow where Elijah stayed? अब आप ही मुझे बताइए, जिस विधवा के घर में एलिया रह रहा था, वहां पर क्या अकाल था? घटी थी उस घर में? थी क्या नहीं? No, there was a continuous flow of oil, and there was a continuous flow of That's right. flour. I don't know what they were making, but maybe they made a nice cake and they were eating. नहीं नहीं नहीं, उस विधवा के घर में नहीं थी। क्यों? घटी नहीं थी, कमी नहीं थी, वहां पर तो तेल बहता जा रहा था और आटा भी नहीं कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर का भक्त वहां पर था। So even during this time of where the world is in anguish. They are waiting for that economic crash which they're all talking about, and many people are going to lose their jobs. We as children of God, we have made our prayers, we have made our petition to Hallelujah. God, because we have basic needs, and for basic needs to be met, we need money, and That's that money right. comes from where? It comes from a job that God has blessed us with. Amen. सुनिए, हम भी इस अकाल जैसे समय में, जहां पर सब लोग क्या देख रहे हैं, अब दुनिया को देखकर बोल रहे हैं, अरे भैया ये जो आर्थिक चीज है कभी भी गिरने जा रही है, कभी भी खत्म होने वाली है। पर ऐसे भी दिनों में आप उस परमेश्वर पर आपका भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि ऐसे भी दिनों में वो आपकी जरूरतों को
पूरा कर सकता है, आपका उपबंध कर सकता है, सब कुछ आपके लिए वो पूरा करके दे सकता है। कैसे? आपको नौकरी देके, नौकरी के द्वारा आपको वो पैसा दिला सकता है, और एक थोड़ा सा नहीं, ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर, आपके देने के ऊपर और प्रार्थना के ऊपर निर्भर है। So let us continue the prayer of authority. आइए अब इसके आगे बढ़ेंगे, अधिकार की प्रार्थना आज देखेंगे। Now you have authority which God has given you. अधिकार वाली प्रार्थना कौन सी होती है? अधिकार प्रभु ने आपको और मुझे दी है। So you have the right to pray with authority and ask God That's right. for whatever your petition is. इसका मतलब होता है आपको अधिकार दिया गया है परमेश्वर को मांगने के लिए, अधिकार से मांगने के लिए, जो कुछ आपका हक है उससे आप मांग कर ले सकते हैं। Now because you have the authority, that is why I need you to understand, we need to understand how we pray and what we ask for. सुनिए, अधिकार हमें दिया है, लेकिन हम कैसे मांगते हैं और किस तरीके से उसको मांगते हैं, वो हमें संभाल के रखना है। Now the word authority in the Greek is ateo, अधिकार का शब्द यूनानी भाषा में अटेयो ऐसा है। used 80 times in the New Testament. 80 बार, कितने बार? 80 बार नए नियम में अटेयो अधिकार ये शब्द इस्तेमाल You किया know what है। it means, ateo? क्या है उसका अर्थ? क्या है? Please God, I ask, please God. You know? ऐसा है कि हाथ जोड़ के हम भीख मांग, प्रभु दे दे। No! नहीं, It means I demand. नहीं, इसका अर्थ होता है मैं इसके लिए अधिकार से मांग लेता हूं। Hari, can we say that to God? No, we cannot say I demand, but I ask for. What did Jesus say? Ask and it shall be given. यीशु क्या बोला? भीख मांग के परमेश्वर को मांग लीजिए? नहीं, यीशु बोला मांगो, मांगो और तुम्हें मिलेगा। So what Jesus saying? Demand, ask. मांगना, आप जबरदस्ती से आपका अधिकार इस्तेमाल करके मांगना। According to that Greek word ateo, it means demand. और अटेयो जो शब्द है उसका अर्थ होता है अधिकार से मांगना। So you need to know when you demand something, That's right. what are you asking for? Is it like how Jesus said, but not my will, but according to your will, God? जैसे यीशु बोला मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा होने देना, आपको भी ऐसे अनुरोध करना है, हक से लेकर आपको मांगना है When परमेश्वर you को। know what you need, Amen. जब आप जानते हो कि आपको कौन सी चीज लगती you है, can demand it from God. हालेलुया, तब आप उसका अनुरोध आप हक से परमेश्वर You should not be afraid. मांग सकते। आपको डरने की बात नहीं है। You can ask it and ask it boldly. डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप धैर्य से आप हियाव बांधकर परमेश्वर को मांग सकते हैं। Lord, provide food. We need food. That's right. परमेश्वर को बोलना, ऐसे बोला, परमेश्वर भोजन देना और तू भोजन जरूर हमें देना। You said ask and it shall be. Do you think your Father who is in heaven, who loves you, who is your provider, he does not know that you need food and he would not feed you? आप क्या ऐसे समझते हो कि जो आपका पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है, परमेश्वर जो आपका पिता है, वो क्या जब आप मांगोगे वो आपको भोजन नहीं देगा खाने के लिए, ऐसा ही भूखा छोड़ देगा? You think it's a good example if you go out with your clothes which are dirty and torn and old, Yes. and people say, "Are look at this Christian, he is like a beggar." No, he provides, he clothes That's you. right. देखिए, क्या आप ऐसा सोचते हो कि आप बाहर ऐसे ही घूमोगे फटे फुटे कपड़े पहन के और लोग बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, देखो ये तो यीशु का चेला है? ऐसा कभी नहीं होगा भैया। परमेश्वर सब कुछ देता है, उपबंध करता है, वो प्रोवाइड करता है, कपड़ों से लेकर खाने तक सब देता है। Do you think it's a good testimony? Are look at that Christian living on the footpath. He has no home. You pray, God, I need a home. That's right. देखिए, क्या वो अच्छी गवाही है जब एक मसीह व्यक्ति रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ है और उसको घर नहीं, बेघर है? नहीं, आपको परमेश्वर से मांगना है, हक से अनुरोध करना है, परमेश्वर मुझे घर दे, मकान दे, क्योंकि ये तेरा वायदा मेरे लिए, मैं तेरा बच्चा हूं। Now, I don't know, please do tell us if you have come across a believer that is a Christian who has no food and is living on the street. Tell us, we can actually do something to help them. अब हमें तो पता नहीं है कोई ऐसा विश्वासी जो रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ है, जिसका घर नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं, खाना कुछ नहीं, गरीब बेचारा भूखा वहां पर बैठा। ऐसे हम किसी को, मसीह व्यक्ति को नहीं जानते। अगर आप जानते होंगे हमें जरूर बताइए, हम हमारी कलीसिया की तरफ से उनकी मदद जरूर कर देंगे। Have you ever heard a Christian coming? अरे यीशु के नाम दे. No, I've heard of any other gods, but यीशु के नाम दे भैया दे. No, I have not heard.
कभी कोई Please tell me. भीख मांगते हुए मसीह व्यक्ति को आपने सुना है? आप बताइए, जो हाथ बढ़ाकर बोलता है यीशु के नाम से पैसा दे दे। नहीं नहीं नहीं, दूसरे देवताओं के वो नाम लेते हैं, लेकिन यीशु का नाम कभी नहीं लेकर उन्हें भीख I've मांग, not heard. कभी भी नहीं, I've not heard. कभी भी नहीं। This, we are speaking of the God of this Bible. He Amen. is the true and living God, the Amen. God of Abraham, the God of Isaac, the God of Hallelujah. Jacob, the God of Israel. हम इस्राएल, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बारे में बातें कर रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर है। What did Jesus say? यीशु क्या बोला? John 15:7. If you abide in me and if my words abide in you, you ask. यूहन्ना 15 में लिखा है, अगर तुम मेरे अंदर रहते हो और मेरे वचन तुम्हारे अंदर रहते हैं, Okay, let's go there. तो आप मांगो। These Mango. are beautiful verses. बहुत ही सुंदर खूबसूरत आयतें हैं ये। Hallelujah. John. Let us see that. If you 15:7. 15:7। If you abide in me and my words abide in you, you will Amen. ask. Amen. You will ask. Ateo. You will ask. You will demand. Amen. Yes. Yes. 7वीं आयत, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो चाहो तो जो चाहो मांगो, अटेयो, मांगो और वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। What you desire, and it shall be done for you. जो कुछ तुम चाहो मांगो, जो कुछ तुम चाहो मांगो। Now, what you desire, that is between you and God, because now we are teaching you that you need to ask according to God's will. अब हम आपको सिखा रहे हैं, जो कुछ आप चाहते हो वो चाहत प्रभु के इच्छा के अनुसार होना जरूरी है। वो चाहत मांगने के बाद अटेयो आपको मिलेगा। Abide is from the word meno, which means to stay or to dwell. बना रहना, बने रहना मतलब किसी चीज में रहना, To indwell. वास करना, To indwell. वास करना। Or to remain in constant union. या दूसरा मतलब है कि आप हमेशा की उस योग में या एक होकर रहना, Or to take permanent residence. संयोग में रहना, या आप जो परमानेंट रेसिडेंस जो बोलते हैं You वहां see, पर आप रहते हो You won't find the हमेशा के लिए। that word comes from one Greek word, which you find difficulty in finding the meanings in Hindi and English, but it's there. और हिंदी इंग्लिश में ये बताना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन ये यूनानी शब्द में इतने ज्यादा, एक शब्द में इतने ज्यादा अर्थ है। What did Paul write to the church in Philippi? फिलिपियो के कलीसिया को पौलुस क्या लिखा? And my God will provide all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा कर देगा। Provide all your हालेलुया, needs. सारे जरूरतों को पूरा कर देगा। Hallelujah. So this morning, when फिलिपियो के 4 अध्याय में लिखा है, इसलिए आज सुबह when you make your petition, जब आप आपकी विनती को परमेश्वर के सामने पेश करते हो, yes, you can make it boldly, you can demand from God, but make sure it is according to God's will. इसलिए जब आप आपके विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हो, ये पहले आप ठाम लीजिएगा कि आपकी इच्छा, आपकी जो चाहत है प्रभु के इच्छा के अनुसार हो, तब ही उसके सामने आप वो प्रस्तुत कीजिए। Amen. And 19 says, Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. 4:19 फिलिपियो की पत्री में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। So Jesus Hallelujah. is saying that if my words, my commandments, my laws, that is why when I speak about Bless you, tithes Lord. and offering, it is a biblical law Amen. of giving. Amen. It has been there before the law of Moses came into being, existence. इसीलिए जब हम दशमांश और अर्पण के दान के बारे में बोलते हैं, ये हमारे लिए किसी संस्था के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये जो नियम स्थापित परमेश्वर ने ही किया था भैया। और कब किया था? वो मूसा के पहले, अब्राहम के पहले वो स्थापित किया हुआ था। दशमांश देने का ये नियम सबसे पहले स्थापित किया था परमेश्वर ने। So when these words, the word became flesh, the Bible says, isn't it? यही कलाम, यही वचन जो आपने आज सुना है, वचन क्या हुआ? देधारी हुआ। So if my words become permanent residency, that means it means it lives in
it indwells Amen. permanently in you, सुनिए, यीशु का कहने का मतलब है, अगर मेरे वचन, ये मेरा वचन आपके अंदर जाकर अगर उसने हमेशा के लिए वस्ती किया या वहां पर रहने की उसने अगर ठाम लिया, you do not decide, okay, तैयारी I accept this part of scripture, this part, no. आपके ऊपर ये निर्भर नहीं है बोलने Yes. के लिए भैया ये जो भाग है ना कलाम का मैं इसको ही ग्रहण करूंगा, ये बाकी वाला जो भाग है भैया इसको मैं नहीं लूंगा. You know, I know some Indians are very stubborn, Christians. मैं जानता हूँ बहुत मसीह लोग खास तौर से भारत के जो है बड़े स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं. Zitti. I only believe in this one. No, I don't. जिद्दी, बड़े जिद्दी होती है. हाँ, मेरा इस पर ही विश्वास है, इस पर नहीं है. Keep your stubbornness to yourself. It doesn't work with God. आपका जिद्दीपन आपके पास ही रख दीजिए, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. So if the word of God अच्छा नहीं लगता. indwells in you, if it dwells in you, whatever you ask for, whatever you demand for, you Amen. shall receive. सुनिए, इसका मतलब क्या होता है? प्रभु का पूरा वचन, पूरा कलाम, थोड़ा थोड़ा भाग नहीं जो आपको अच्छा लगता है, पूरा कलाम अगर आपके अंदर रहे और हमेशा के लिए वहां पर रहे तो आप जो कुछ भी मांगे आपको मिलेगा. Now आप listen, पूरा listen to किया this part. जाएगा. Listen to this part. अब इसके बाद वाला Not भाग only what you सुनिए, receive, what you demand for. केवल जो आपने मांगा उतना ही आपको नहीं मिलेगा. Now because God's word dwells inside of you, लेकिन अब प्रभु का कलाम आपके अंदर, आपके भीतर अब रह रहा है, इसलिए you will not ask for things which is out of line. आमेन. प्रभु का कलाम आपके अंदर है भैया, इसीलिए बेटा तू प्रभु के कलाम के बाहर वाली चीजों को नहीं मांगेगा. Out of line of His will in your lives. You would not ask Amen. for these things. प्रभु का वचन आपके अंदर है, इसीलिए उसके वचन के, उसके इच्छा के अनुसार ही आप मांगेंगे. उसके Amen. बाहर जो है, इच्छा के बाहर वाली चीजें आप नहीं मांगेंगे. So if His word it dwells inside of you, when I say His word, it means Genesis to Revelation, Amen. not what you wish to choose which That's book. right. I say I am of the New Testament, not the Old Testament. Some of you, there are many Christians and there are जब- many pastors who don't like the Old Testament. जब पूरा वचन, पूरा कलाम, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा कलाम, बहुत पासवान और बहुत मसीह लोग हैं जो बोलते हैं हमें ना भैया पुराना नियम अच्छा नहीं लगता है. So when the word of God dwells inside of you, when the word of God has taken permanent Amen. residence, sorry, when he has taken a permanent residency, जब प्रभु के कलाम में और उसके वचन ने आपके अंदर हमेशा के लिए वास करने की अब इच्छा रखी है या आपके अंदर वो रहता है. don't forget the word of God is power. ये भूलिए मत, टुकड़े टुकड़े ने प्रभु का पूरा कलाम और उसमें सामर्थ्य है. It is the word of God that transforms you. वचन है जिसमें कुवत होती है, वचन है जिसके द्वारा आप बदल जाते हो. That is why you never ask God for anything which is not in line of His will Absolutely. in your life. इसीलिए पूरा वचन आपके अंदर जब रहेगा, वस्ती करेगा, वास करेगा, तब वचन के बाहर जाकर आप नहीं मांगोगे, वचन के साथ साथ चलने वाले बातें ही प्रभु से मांगेंगे. Yes, Amen. you can go to God and ask boldly. तब आप जाकर प्रभु के सामने हियाव बांधकर धैर्य से प्रभु को मांग सकते हैं But it और has to मिलेगा. be according to His will. लेकिन ये बात उसके इच्छा के Okay. अनुसार होनी ही चाहिए. Now, you young man, you a young woman, when you ask for a husband or a wife, अब जो जवान लड़के और लड़कियां हैं, जब आप पति पत्नी के लिए मांगते हो, you know, I have a friend back home, and he's still looking for a wife, and मेरा एक- and what he's looking for is a very, I understood that afterwards, a very beautiful wife. अब सुनिए, मेरा एक दोस्त है पीछे, मतलब मॉरिशस में, जो अभी भी उसके लिए एक पत्नी ढूंढ रहा है अपने आप के लिए, और अब तक वो ढूंढता रहा है. मुझे अभी समझ में आया उसको क्यों लड़की नहीं मिल रही है, वो एक सुंदर लड़की के लिए ही You know- बस रुका है. You know, some of you may बस be सुंदर looking होनी for a very, you know, a very beautiful, like top model wife. अब बहुत से जवान है लड़के खास तौर से जो ऐसी पत्नी की चाहत रख रहे होंगे अपने मन में जो बिल्कुल मॉडल की जैसे दिखे. Do you know how much it costs to go and do your hair at the hairdresser? जी Hair हाँ dye बेटा, costs तू 2,500, facial 4,000, 5,000. ले लेना, model को ही ले लेना. Foundation and makeup, and I know the prices.
ले लेना जो है ना, तुम लड़के जो है ले लेना मॉडल को, और बाद में पैसा खर्चा करते जाना, 4,000 फेशियल के लिए, 5,000 बाल काटने के लिए, 2,000 नाखून करने के लिए, बस ये पैसा जाता जाएगा। I know the prices. I see the boards when I go around. I see the beauty parlor. I see the prices. I say, my God, so much. रास्ते पर जो पार्लर के प्राइसेस लगाए होते हैं ना, वो मैं पढ़ लेता हूँ और मैं बोलता हूँ परमेश्वर ये क्या है, पागलपन। I only take some soap and I wash my face and that's it. अरे भैया हम तो साबुन लेके मुंह धोते हैं, हम साफ अच्छे दिखते हैं। No, but sometimes it's good to take care of your skin. नहीं, बहनों के लिए अच्छा होता है कभी कभी आपकी जो स्किन है उसको Yeah, संभालने you के need to लिए। take care, but don't overdo अच्छा it. दिखने के Don't लिए। overdo it. जरूर आप अच्छा दिखिए, लेकिन ज्यादा मत कीजिए। Now you need to look for a partner that is godly. आपको ऐसे जीवन साथी की खोज करना है जो परमेश्वर के भय में जी रहा है या जी रही है। That is God's will, ये परमेश्वर की इच्छा हो गई। हालेलुया। isn't it? जी हाँ। Yes, I know many people who have got many people who have been serving in the church for so many years, who have become a mature Christian, going and finding a partner who has just come to the Lord because he or she wants to get married to the person. सुनिए, मैं बहुत से ऐसे बहुत अच्छे लोगों को, प्रभु के मसीह लोगों को जानता हूँ जो चर्च को बस इसके लिए जाते हैं ताकि वो उनको अच्छी क्या बोलते हैं, साथीदार या जीवन साथी मिले। I'm talking about Mauritius. I don't know India. I Mauritius के think बारे में बोल India, रहा the Christians are very mature and they are very godly. So they get married to, Christians get married to Christians. They don't go outside of the faith. They don't go outside of Israel. भारत के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ये मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। मॉरिशस भारत के मसीह लोग बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि वो जो मसीह है वो मसीह के साथ ही शादीशुदा होते हैं, बाहर से किसी पत्नी को या पति को नहीं लेते हैं। It cannot that you get married to a partner, instead of the partner, both of you encouraging each other and each of you, providing like strength for each other. No, you find yourself draining out. You find yourself emotionally, spiritually, right. You are getting drained out until you become like that person. Is that the will of God? ऐसा होता है जब वो दोनों में से जब एक परमेश्वर के साथ नहीं होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, अंतर आने लगता है वो दोनों में, और फिर एक जो होता है पति पत्नी में से वो प्रभु से दूर हटने लगता है, और ये दूसरी जो होती है प्रभु के पास लाने के लिए जबरदस्ती करती है, ज्यादा कोशिश करती रहती है, और पूरे इसमें थकान आ जाती है। बिल्कुल प्रभु का काम तो होता नहीं है, क्योंकि उनके मन, उनके विचार, उनके ख्याल एक जैसे नहीं है। One of you will say, it's Sunday, we have to go to church. The other one, who is a weaker one, who just got married, who became a Christian because he wanted to get married to you, maybe because you got a good job and you earn a lot of money. अब ये दोनों हैं, एक मसीह है और उसकी नौकरी अच्छी है, इसीलिए एक वो दूसरा लड़का आया, उसके साथ शादी लड़का और लड़की है, लड़का या लड़की कोई भी हो, प्रभु के घर में क्यों आते हैं, चर्च में क्यों आते हैं, मसीह क्यों बन जाते हैं? केवल शादी करने के लिए, क्योंकि वो लड़की या लड़का मसीह है, इसीलिए मैं शादी करने के लिए बस मसीह बन गया, उसके बाद में मुझे कुछ परवाह नहीं है। You want to go to church and you say, अरे it's Sunday, छुट्टी है यार, सोने दे यार, what to go to church यार, this is what you're going to get married to? अब रविवार का दिन आ गया और सुबह उठकर जो मसीह व्यक्ति है बोलता है चलो अभी चर्च जाने के टाइम आ गया है। दूसरा क्या बोलता है, जो सिर्फ शादी के लिए मसीह हो गया, वो क्या बोलता है, नहीं छोड़ दे, सो जा, अब आज एक ही छुट्टी मिलती है, सो जा, सोने दे मेरे को। ऐसा होने लगता है। Yes, you sleep. ऐसा होने लगता है। Because God is coming at the hour when you know not. सो जाना बेटा, और सो जाना, क्योंकि परमेश्वर तो आ रहा है, वो तो अपना आना जो है रुकाने वाला नहीं है तेरे लिए, आएगा वो, और ऐसे घड़ी में आएगा जो तुझको पता नहीं। Now let us see what the writer of Hebrews says in chapter 4 verse 16. इब्रानियों के लेखक का हम देखेंगे, जिसने लिखा है इब्रानियों की पत्री में 4:16 में, Let us therefore come boldly to the throne of grace. How? Boldly come to the throne of grace. इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर, कैसा आना है, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। 1 John chapter 5 says, 1 यूहन्ना 5 verse 14, 1 यूहन्ना 5 and this और is 14 the confidence that we have in him, that is Jesus, लिखा गया है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है,
that if we ask anything according to His will, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं, there's a condition. यहाँ पर एक कंडीशन है, You ask, मांगो, but there's a condition. लेकिन वो किसी दूसरे चीज पर निर्भर होता है। According to His मांगना। will. कैसे मांगना है? उसके इच्छा के And what अनुसार। happens after that? और उसके बाद में क्या होता है? He continues, He hears us. आगे जाकर पौलुस बोलता है, तो वो हमारी सुनता है। And हालेलुया। if we know that He hears us, whatever we ask, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, we know that we have the petitions that we desired of Him. तो ये भी जानते हैं हम कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Hallelujah. Amen. This is a promise. Amen. ये वायदा है। This word dwells inside of you. ये वचन भाइयों बहनों आपके अंदर रहता है। Yes, just like the 10 Commandments, which is a law, it is not only for the Israelites, it is God's law. It has Yes. it has to abide inside of you. जिस प्रकार से वो 10 आज्ञाएं थी जो आपके अंदर रहने वाली थी, रहने चाहिए, ये आपके अंदर वास करनी चाहिए, उन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने इसके लिए ही दे दिया, उसी प्रकार से ये भी है। So we can strongly request, we can demand, we That's can right. ask, like the Bible says, boldly. That's right. And it shall, whatever you desire, He hears you. God hears your prayer. Isn't that wonderful, Amen. brothers and sisters, that God is hearing you? सुनिए भाइयों बहनों, आपको विनती करनी है, याचना नहीं, विनती करनी है, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, मांगना है, अनुरोध करना है, हक से मांगना है। हालेलुया। और परमेश्वर को हियाव बांधकर मांगना है। जब आप मांगोगे तो आपको मिलेगा ऐसा वायदा, ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको Now, दी है। I don't want, like when you're asking God, अब मैं नहीं चाहता हूं जब आप परमेश्वर से कुछ मांग and रहे God हैं, says, "Oh, what is He saying? What is He saying? अब What is ऐसा He नहीं, asking for?" ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर कानों को बंद करके बोले, अरे ये क्या मांग रहा है अभी। Are what is he? What is this girl or what is this boy that she wants to get married to? अरे ये किस प्रकार के लड़के से लड़की से शादी करना चाह रहा है। You know, it's such a pity. I have seen Christians getting divorced at a very young age, 2 to 3 years of marriage. I have seen this when I was living in the UK. I have seen this in Mauritius. I don't know about India if this happens, but remember one thing. Leaving your husband or your wife as a Yes. believer, it is a sin. सुनिए, बहुत दुख और दर्द वाली बात मैंने देखी आंखों से, जब मैं यूके में था, मॉरिशस में था, भारत में होता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मसीही जो ये लोग शादीशुदा जो कपल्स होते हैं, 2-3 साल भी नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ, डिवोर्स हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक देते थे एक दूसरे को। और ये क्यों हो रहा है भैया? दुख वाली, दर्द वाली ये बात है। Okay? It's a sin. मसीहियों में तो ये बिल्कुल ही नहीं होना And चाहिए। it is the biggest sin to take your husband or your wife to court, which the Bible says you should not, go against, or you should not become you should not give false Witness. testimony or become a false witness against a brother or a That's sister. right. सुनिए, ये पति पत्नी के I लिए think this है, is for someone out there. छोटी छोटी बातों के लिए आपको कोर्ट में जाने का नहीं है, आपके पति और पत्नी को खींच के कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल के अनुसार ये गलत है, ये पाप है, गुनाह है। वहां पर लिखा है कि तू तेरे भाई और बहन के विरोध में कोर्ट में जाकर, वो अदालत में जाकर तू उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकता है। बाइबल के अनुसार ये वचन है। Your judge Saab is there. झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। आपका न्यायाधीश वहां पर बैठा है, जज साहब ऊपर बैठा Honor है, him. उसका सम्मान, उसकी Yes, इज्जत रखिए। we honor the judge in the thing. Your honor, but honor goes to your judge. in जी हाँ, heaven. जो यहाँ पर का न्यायाधीश होता है अदालत में का, उनका तो सम्मान हम करते, लेकिन ऊपर जो बैठा उससे भी वो ऊपर, उससे भी ज्यादा ताकतवर वो है, उसकी इज्जत रखना। Now from today you can ask God with confidence whatever you need. और ये किसी के लिए, ये जो मैं बोला अभी वो किसी के लिए था जो हमें देख रहे हैं, लेकिन आज से जिस पर आप विश्वास रख रहे हो, जिसके लिए आप विश्वास रख रहे हो, उसको प्रभु को मांग And when लीजिए। you make such a prayer, God is not offended. आप जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हो, मांगने वाली प्रार्थना, परमेश्वर उससे नफरत नहीं No, करता, because he knows that you have now understood.
परमेश्वर को उससे कुछ तकलीफ नहीं होती, उसको पता चलता है कि अभी मेरे बच्चे को प्रार्थना कैसी करनी है समझ Because he's लीजिए। understood that his word now dwells permanently inside of you. पता हो गया, अब वो समझ सकता है कि उसका वचन, उसका कलाम आपके अंदर पूरा पूरा है। And हालेलुया। whenever you ask him, फिर आप जो कुछ भी whatever मांगे, desire you have, he will give you like the Bible says. जो कुछ भी तमन्ना है, जब आप उसको अनुरोध करेंगे तो आपको वो दे देगा बाइबल के अनुसार। Amen? हालेलुया। Amen. We'll end here this morning. और आज सुबह के लिए यहाँ पर ही हम See, रुकेंगे। time flies when we are drowned or when we are just immersed in God's word. और समय बस ऐसा यूं ही निकल जाता है जब प्रभु के वचन और कलाम में हम और भी ज्यादा गहराई में जाते रहते I हैं। can continue to preach. I've got so many points which I have not mentioned yet. मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जो मैंने बोले भी नहीं, मैं और ज्यादा बोल सकता हूँ। But the little that I want you to grasp, I want you That's right. to take what we have given you this morning. लेकिन I आप- don't want you to lose concentration and go around walking and doing something else now. No. सुनिए, अभी अभी जिधर आप हैं वहां पर ही बैठ जाइए, इधर उधर घूमना मत, और आपकी जो विचार और ख्याल है यहाँ वहाँ घूमने मत देना, बस वहां पर बैठे रहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपने आज जो सुना आप आपके जीवन में करके आप उससे आशीष और बरकत पाएं। I can preach for hours. मैं घंटों घंटों तक भैया प्रचार कर सकता Now, हूँ, कर सकता If हूँ। we were together in the hall, you would have no choice but to listen because I'm there. But even though some people they can look at you, but they can be lost in their own world and not listen. अब हॉल में तो आप मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वहां पर बैठकर आपको सुनना ही पड़ता है। आप घर पे आप क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बैठ तो जाते हैं लेकिन मन उनका किधर उधर घूम रहा होता है। So this morning we've heard the prayer of petition and the prayer of authority which you have. Amen. It is yours. You have this authority. आज सुबह हमने सिफारिश वाली या विनती वाली प्रार्थना सुनी, उसके बारे में हमने सुना। उसके बाद में अधिकार की प्रार्थना क्या होती है वो भी हमने सुना, अधिकार हमें दिया है। So let us pray. इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर Close your करेंगे। eyes, each and every one of you. हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करने वाले हैं। Oh, Abba Father, we've heard your word this morning. अब्बा पिता, तेरे वचन को हमने आज सुबह सुना। Your word and your law abides in us, Lord. तेरा कलाम और तेरा नियम हमारे अंदर वास करता है। We accept it, Lord. आज हम उसे ग्रहण करते हैं। For you are the living God. शरले बेरे, क्योंकि तू ही जिंदा परमेश्वर And we है know there is power in your word. और तेरे कलाम में कुव्वत है, हम जानते हैं। There is power to heal by just ओ using your word. हालेलुया, तेरे वचन को इस्तेमाल करके शिफा मिलती है। There is power in your word. तेरे कलाम में सामर्थ है। Your word हालेलुया। delivers. यस लॉर्ड, तेरे वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है। Whatever we ask in your word, Lord, you give. जो कुछ भी तेरे वचन के अनुसार अगर हमने मांगा तो हमें मिल जाएगा। This morning, आज सुबह we've understood. हम समझ गए And we ask for forgiveness if ever we Oh, have yes, made Lord. prayers which are not according to your will. हम समझ गए परमेश्वर, आज सुबह हम माफी चाहते हैं यदि हमने कुछ प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के बाहर अगर की हो तो। But I know your love is renewed every morning. लेकिन तेरा प्यार हर सुबह तू नया कर देता है, हर भोर को नया From करता this है। day when we come to you in prayer, इसलिए आज जब हम तेरे सामने प्रार्थना में आते when we हैं, bring our petitions to you, Lord, हमारे विनतियां हम तेरे सामने प्रस्तुत करते it हैं is going to be according to your will. और ये सारे विनतियां हमारी तेरे इच्छा के अनुसार हो। This is Yes, my Lord. prayer for the Kabod temple, for all the brothers and sisters who are listening to us right now. ये मेरी प्रार्थना कबो टेम्पल के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जो हमारी सुन रहा है उनके लिए है। Provide for us, Lord, to strengthen our faith. आमीन। तू हमारे लिए सारी चीजों का उपबंध कर ताकि उससे हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। You know where we are lacking. कहाँ पर हमें घटी और कमी महसूस हो रही है तू जानता है। Thank you for allowing us to understand why sometimes our prayers are delayed or not been answered. ओ तूने हमें समझ के लिया परमेश्वर कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर किधर हमें मिलता नहीं है और उसके पीछे कारण कौन सा। Thank you for reminding us और तू याद दिलाता है that we can pray with authority, कि हम अधिकार लेकर प्रार्थना कर सकते that we हैं। can come to you, the grace of the throne of grace, and we can ask boldly to you. आमीन। हम उस अनुग्रह के सिंहासन तक
या बांधकर आकर हम प्रार्थना में मांग सकते हैं। We believe the word when you said, ask and it shall be given, seek and you shall Yes. find. उस वचन पर हमारा विश्वास है, जो तू बोला मांगो तो मिलेगा और ढूंढोगे तो आप पाओगे। This morning as a pastor, I ask यस लॉर्ड, आज तेरा दास होने के नाते मैं मांगता हूँ that the Kabod temple husbands and wives शरलेबे, become closer Yes, and closer Lord. to you, God. कि सारे कबोट टेम्पल के सदस्यों को, खास तौर से पति पत्नियों को तेरे करीब और करीब आने दे। And may they teach their children Lord. to be obedient. शलोलबहो, उनके बच्चों को भी उन्हें सिखाने दे कि आज्ञा में रहना क्या होता है। Teach them how to pray not only for themselves but for others too. ओ दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्या होता है, ये सिखा दे। Oh yes, thank you for teaching us this यस morning लॉर्ड, परमेशर हमें आज सुबह सिखाया, इसलिए and धन्यवाद देते reminding हैं us और याद दिलाया we can come boldly to your throne of grace. कि हिया बांधकर हम उस सिंहासन तक आ सकते हैं। This morning I pray आज सुबह मैं प्रार्थना for करता divine हूँ protection upon Yes, the finance Lord. of each and every family in the Kabod temple and all those who are listening Yes. to us right now. यस, हर एक जन जो सुन रहा है, हर एक सदस्य के लिए, कबोट टेम्पल के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आर्थिक चीजों पर, उनके पैसों के ऊपर ओ तेरी छाया रहे, तेरी साया रहे। Oh Abba Father, you are loving, you know our basic needs. और तू हमारे जरूरतों को, आवश्यकताओं को जानता है परमेश्वर। I pray for divine healing for all those who are sick right now, who are in need right now, who are suffering from Yes, infirmities. Lord. I pray that they will be Yes, healed Lord. right now. परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो लोग उनके शरीर में और मन में बीमार है, यीशु के नाम से चंगाई पाले। I pray for the shalom, the peace in all the families between the parents, the children, and Yes. between husband and Yes. wife, and even and the other Yes. members of the family. इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा शलोम, तेरी Hallelujah. शांति हर एक सदस्य के घर में, परिवार में रहे, माँ बाप में और बच्चों में, सारे लोगों में शांति और शलोम हमेशा रहे। Yes, Lord, hallelujah. हमेशा रहे। Yes, let there be peace. Let there be peace wherever you go. ओ शांति, जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपके साथ साथ Oh, जाना। yes, we thank you, Prince of Peace. धन्यवाद देते शांति के राजकुमार को। Thank you, Jesus. धन्यवाद Jesus, यीशु। yes. Oh, Lord, we thank you. धन्यवाद यीशु, And we thank you for answering our prayers. हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर तूने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Thank you. In the name of Jesus, we pray. ओ धन्यवाद देकर यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।